Hello students, I am Sushil Misra and today we are going to start miscellaneous exercise chapter 2nd. I have taken two questions. Before that I want to just inform you, kindly see the full video, don't try to skip it because by skipping you are losing more concepts. Okay, so try to go through with the complete video. The first question is what? Cos inverse cos 13 pi by 6. So as you know, cos inverse into cos theta will be theta, so this will give us 13 pi by 6, but this does not belong to range of cos function. Okay, so cos inverse cos 13 pi by 6 can be written as cos inverse cos, and this 13 pi by 6 can be written as beta pi or 2 pi plus pi by 6. अगर आप देखें 6 2 जा 12, 12 plus 1 will be 13. Okay, and you know that, or we know that cos 2 pi plus theta is what? Cos theta. We know that cos 2 pi plus theta is equal to cos theta. Once again 2 pi, okay, 2 pi plus theta means the first quadrant. In first quadrant everything is positive, and as you know, I hope so you have studied in class 11th. आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब n पाई होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता. साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा, लेकिन साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस में चेंज हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे n पाई है, n पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, एज इट इज़ रहते हैं. अगर ऑड हो गया, अगर इस फॉर्म में आ गया तो क्या हो जाएंगे, फिर वो चेंज हो जाएंगे. साइन कॉस में होगा, टेन कॉट में होता है, कॉसेक सेक में होगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी. So now let us see this question. So this will be what? Cos inverse cos 2 pi plus theta cos theta. Now cos inverse into cos will be theta, and that is what? Pi by 6, which belongs to 0 to pi, and this will be your answer. Now see the second one. This can be written as 7 pi by 6, but this does not belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so this will be what? Again we can write this. So tan inverse tan 7 pi by 6 can be written as what? Tan inverse tan 7 pi by 6. इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको अगर हम लिखें pi plus pi by 6, this also can be written as, okay, this can be written as pi plus pi by 6. Okay, so here you can see this will give us tan inverse in bracket tan pi plus pi by 6, tan 180 plus theta, third quadrant, pi, this will be what? Pi plus theta, third quadrant, add sugar to coffee. It means third quadrant tan will be positive, so this will give us tan pi by 6. So this will be the answer, pi by 6. But you check whether pi by 6 belongs to, yes, this belongs to minus pi by 2 to pi by 2. So this will be your answer. If the question is correct. 7 pi by 6, 6 1 जा 6 plus 1 7 pi by 6, tan 180 plus theta tan theta, n pi है तो tan क्या होगा? tan के फॉर्म में ही रहेगा बेटा. तो tan pi plus pi by 6, tan 180 plus theta will be tan theta only. So this will be tan pi by 6, tan inverse to tan will cancel out, this will be pi by 6. So in both the question answer is what? Pi by 6. In both the question answer is pi by 6. Now I am taking question
9th. Question 3rd to 8 is similar. So for that question number 3rd to 8 I will be bringing some other videos, and now we are going to see question number 9, 10, 11 and 12. Question number 9, 10, 11 and 12. Okay. So now the question is tan inverse. Let me write the question firstly. Question number 9, tan inverse root x is equal to 1 by 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x, where x belongs to 0, 1. क्लोज. चलो, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो बेटा, आपके पास LHS सिंगल टर्म है, RHS ये है. सो ऑन टेकिंग RHS, अगर हम लोग RHS को लेकर चलें तो RHS को लेते हैं तो क्या होगा बेटा, ये 1 बाई 2 कॉस इनवर्स. इसको अगर आप देखो तो मैं 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ. ओके, रूट एक्स होल स्क्वायर विल बी एक्स ओनली. ओके, सो दिस कैन बी रिटन. नाउ पुट रूट एक्स इज इक्वल टू, क्या करें हम लोग, रूट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा. सो थीटा विल बी टेन इनवर्स रूट एक्स. अगर आप देखें तो आपको टेन इनवर्स रूट एक्स यहाँ मिल गया. क्यों हमने किया, टेन किया, अभी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई 2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट एक्स की जगह टेन थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी 1 बाई 2 कॉस इनवर्स, दिस इज नथ कॉस थीटा. मैंने पहले ही बोला है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. टेन का है तो टेन के फॉर्म में, अगर आपको फार्मूला याद है आप बहुत आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. सो एज यू नो 1 बाई 2 कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, दिस विल बी 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, विच विल गिव अस थीटा. एंड थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स रूट एक्स, विच इज़ योर LHS. तो इस क्वेश्चन में हमने RHS लिया और उसको सॉल्व किया और LHS मिल गया. ओके, सो दिस इज़ द method to find the solution of question number 9. Now I am taking 12th question. Okay, after 9, 12th. Now I am taking question number 12. आप लोग इसको ज़रूर रिवाइज करते चलें. मिसलेनियस का मतलब सेल्फ प्रैक्टिस होता है. ओके, सो यू नीड टू प्रैक्टिस. 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, 2 रूट 2 अपॉन 3. ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है. आप अगर देखें तो इधर अगर आप RHS में देखो तो 9 बाई 4 है, तो मतलब LHS से मैं क्या करूँ, 9 बाई 4 को कॉमन ले लूँ. तो 9 बाई 4 कॉमन आ जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस 9 बाई 4 पूरा कॉमन हो गया, तो साइन इनवर्स 1 बाई 3 ये बचा. LHS लेकर चल रहे हैं. ठीक है, LHS लेकर चल रहे बेटा, RHS लेकर आना है. चलो इसको अगर देखें आप तो दिस विल कैन बी रिटन एज 9 बाई 4 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स. एज यू नो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये फार्मूला होता है. अब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स. यहाँ एक्स की प्लेस पे क्या है, 1 बाई 3. सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 1 बाई 3. इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 बाई 3. ठीक है. अब 9 बाई 4, अब कॉस इनवर्स 1 बाई 3 को साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है.
ठीक है। फिर से यही लाइन तो लिख नहीं सकते, अदरवाइज़ वो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो कॉस इनवर्स 1/3, 2-3 तरीके हैं। तो आप अगर देखें कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू एक्स ले लें तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/3। अगर कॉस आपको दे दिया 1/3, साइन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साइन एक्स क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है, आपने बहुत क्वेश्चन में सॉल्व किया है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/9, तो दिस कैन बी रिटन √8/9। तो साइन एक्स आया √8/9। तो साइन इन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स √8/9/x। ये आगे आपका x की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √8/9। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। साइन एक्स है, उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको बेटा क्या करेंगे, 9/4। इस पार्ट को आप दिखाना चाहें तो अपने सोल्यूशन में दिखा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप वैसे आप दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस विल बी 9/4 साइन इनवर्स √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, और 9 रूट से बाहर आएगा तो 3। दिस विल बी योर RHS, दिस विल बी योर RHS पार्ट, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर आप उस पर करें तो डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है। फिर से अगर आपको मैं बता दूं तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। उसी के बेसिस पे ये आया है, ठीक है। ये साइन को कॉस को साइन में इस फार्मूले से चेंज किया गया, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 12 का। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11th। It is very difficult to solve each and every question. You also need to practice. Being a 12th class student, you keep practicing. Okay. So now the 11th might be the last for this video. Otherwise the video will get so lengthy. आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। 1 + x अपॉन √1 + x। complete fraction is there, minus √1 minus x plus √1 minus x। ये आपको बेटा, this is your question and we have to so that this will be equal to what, π/4 minus 1/2 cos inverse x, cos inverse x. This will be cos inverse x. So now on taking LHS, I am taking LHS only. So you can see in the question itself it is given, put x is equal to cos 2 theta, put x is equal to cos 2 theta. So we are putting, so this will be tan inverse in bracket √1 plus cos 2 theta minus √1 minus cos 2 theta upon again √1 plus cos 2 theta minus 1 minus cos 2 theta। पिछले वीडियो में जिस बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है तो मैंने पहले बताया था कि 1 प्लस अगर हमेशा प्लस के साथ कॉस कॉस में रहेगा, माइनस के साथ कॉस साइन में चला जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। This is the formula, okay. 1 plus cos 2 theta is equal to, so this again this will be 2 cos square theta minus 2 sin square theta. Formula again here I am writing formula, आप लोग लर्न कर लें। 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta and 1 minus cos sorry 2 sin square theta, okay. दिस इज़ द फार्मूला। आप जब अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 निकल कर यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, और दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। सो प्लीज़ लर्न इट। सो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, कॉस बाहर आएगा, यहाँ से साइन बाहर आएगा, यहाँ से भी कॉस बाहर आएगा, यहाँ से भी साइन बाहर आएगा, सबसे √2
कॉमन आएगा और √2 फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग दिस विल बी cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, √2 सब में था, सबसे कॉमन आया और √2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ओके, आई एम टेकिंग स्पेस हियर। चलो, अगर आप थोड़ा सा देखें तो cos को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। सो दिस विल बी tan इनवर्स cos थीटा विल बी कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, सो दिस विल बी 1 माइनस साइन अपॉन cos विल बी tan थीटा अपॉन this way again cos theta will be common, so 1 minus tan theta somewhere is okay. In denominator it was post plus, okay, in denominator, so this will be plus tan theta. क्या किया बेटा, cos कॉमन लिया तो ये 1 बन गया, यहाँ cos था नहीं तो साइन के अपॉन में cos आएगा, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan, वैसे डिनोमिनेटर में हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, tan इनवर्स, दिस 1 कैन बी रिटन एज tan π/4 माइनस tan थीटा, ओके, एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस हियर 1 प्लस tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 इंटू tan थीटा। Okay, we can multiply 1 with any number, so instead of tan theta we can write 1 plus tan theta, sorry 1 into tan theta, so 1 into tan theta denominator, and in place of 1 we can write tan π/4, as you know tan π/4 is what, nothing but 1, so and this will be tan theta. So on comparing, you see this will be tan inverse, you can see tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, किसका फॉर्मूला होगा, tan x माइनस y का, सो दिस विल बी tan x मीन्स π/4 माइनस y मीन्स थीटा। ओके, कौन सा फार्मूला लगा, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y इज इक्वल टू tan x माइनस y। सो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, दिस विल बी π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा। अब थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालें तो दिस विल बी cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, और ये थीटा देयरफॉर 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 1/4, सॉरी दिस विल बी π/4 माइनस थीटा की वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स x। दिस इज योर RHS, दिस विल बी योर RHS। आप थोड़ा फोकस करें इसको, एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करें, पूरे फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे आगे और भी चैप्टर्स के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।